I knew what is cancer basically, but I was enjoying it because I had that issue कि अपने standard की बीमारी हुई है. What? I swear on God, I was in hostel. My parents had gone out from that station and they were posted somewhere else, and I was staying in hostel doing my graduation with my roommate. I came and like, तुझे पता है मुन्ना मुझको क्या हुआ है? क्या हुआ है? मुझे कैंसर हुआ है. And she's like, you're crazy. Yes. I was very happy. चलो बीमारी हुई तो भी top level की हुई. Hi everyone, welcome to Paxa Stories. At Paxa, our aim is always to make cancer care coordination simple, efficient, and empathetic. So, to understanding every survivor's personal journey, it not only inspires those in need but also gives us insights for medical professionals to improve their care and treatment plans. So, therefore, today we will be discussing about papillary carcinoma thyroid, which is thyroid cancer. And for that, today we have with us Sapna from Chandigarh, who is a survivor of this cancer, and she also exclusively works as a cancer counselor as well. So, and she's here with us to share her story. Thank you so much for joining us, Sapna. Welcome to the show. Thank you so much for having me. Oh, I'm so glad to have met you through this. I can't wait for people to hear the kind of gold mine of knowledge that you have. So yeah, let's just start. So let's talk about what happened, Sapna. Like, how did you like discover like you had this cancer? Like, let's go back to that moment. Basically, Ashwarya, I was 19 years old and way back in 2004. So that time, cancer was not a very, kind of a disease which everybody knew about. It was just कहते ना कि थोड़ा थोड़ा आ ही रहा था. And अचानक से especially as एक दिन for children at that age, you said no, for like children, I was a yeah. teenager and I was fit and fine. I was doing my graduation. And suddenly I started having heat flushes ना बहुत ज़्यादा बॉडी में जैसे गर्मी लगने लग जाना और हीट अंदर से इतनी ज़्यादा बन रही थी. So we used to talk to doctors and they used to say कि नहीं ये पढ़ाई का बहुत टेंशन ले रही है and ऐसे करके. But then धीरे धीरे I started feeling node also. मेरे थायराइड मतलब यहाँ गले में I started feeling node कि कुछ तो है. ध्यान नहीं दिया बिकॉज कभी सुना ही नहीं था कि नोड्स भी होती हैं या कोई ये ध्यान देने वाली चीज है बिकॉज स्पेशली इन कैंसर बहुत कम केसेस हैं जिसमें दर्द होता है. देयर इज नो पेन व्हेन इट Oh, कम्स टू योर नोड्स. either it is in thyroid or it is in breast or it's anywhere, the cases are that दर्द नहीं होता है. तो मुझे भी कोई दर्द नहीं हो रहा था तो वो चलने दिया. मैंने कहा जस्ट लेट इट बी एंड आई वाज बिजी विद माय कॉलेज लाइफ. बट देन इट स्टार्टेड ग्रोइंग अप. वो बढ़ने लग गया. इट वाज कमिंग आउट ऑफ माय नेक. तो एंड दिख रहा देन था आई वो? वो दिख रहा था. आई कुड फील इट. वो ऐसे पूरा दिख रहा था कि समथिंग हैज बम्प हैज कम आउट ऑफ माय नेक. Okay. सो देन माय मॉम सेड कि वी शुड सी अ डॉक्टर. एंड वी वेंट टू हिम. दे सेड कि ऑपरेट कर देते हैं, थोड़ा नोट बढ़ गया है. बट इन दैट टाइम ना डॉक्टर्स ऑल्सो डिड नॉट एक्सपेक्टेड कि ये कैंसर हो सकता है. ओके. सो उन्होंने काटा, वो ऑपरेट करा मेरा पूरा गला. दे कट माय पूरा नेक. उसको उन्होंने भेजा जरूर टेस्टिंग के लिए. बट समहाउ दे मिस्ड टेलिंग मी और कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ. मुझे नहीं पता चला कि हमें कोई रिपोर्ट लेनी है. हमारे लिए तो ऑपरेशन हुआ एंड वी वर हैप्पी गोइंग बैक होम. आफ्टर 2 years, 2 साल वो कैंसर पॉजिटिव तभी आ गया था बट नहीं पता चला. आफ्टर 2 years ऐसे ही किसी रैंडमली मैं ऐसे ही डॉक्टर से किसी चीज के लिए मिलने गई तो इसने कहा ये कट किस चीज का है. एंड आई सेड कि 2 साल पहले ऑपरेशन हुआ था. ही आस्क्ड कि उसका रिपोर्ट कहाँ है. तो ऐसा नहीं, इधर से कोई रिपोर्ट नहीं है. तो आई वाज लाइक व्हाट 20, 21 समथिंग. So he forced me. कहते हैं ना कि if God wants to save you, he will send somebody. So that doctor was after my life to go to lab and get the reports, and I was like least bothered. I was like क्यों पीछे पड़ गया ये doctor types. And then he sent a भैया also कि वो जो उनके gatekeeper होता है कि नहीं उसको लेके जाओ lab में. Do you He remember forced me. which doctor this was and which hospital this is? I'll not take names. Let's not take the names because this was a mistake by a doctor. Not Okay. telling me, not No, giving the me the the person report. who said कि क्या I don't I remember his name. I was too okay. young, yeah. And he was just a medical OPD. OPD mein there was But some this doctor. was in उसने Chandigarh then? no, no, no. This was back in, Devlali. That's near Bombay. Okay. Yeah. So he sent So someone from with you as well, yeah. he sent a person with me कि आप इस लड़की के पीछे जाओ, ये नहीं जाएगी रिपोर्ट लेने. और उसने मुझे फोर्सफुली लेकर गया. नहीं मैम रिपोर्ट निकालो. जब रिपोर्ट निकाली और उसमें 2004 because it was 2006 Hmm. when all this were happening.
जब खोला तो इट वाज 2004 का, तो उसमें साफ साफ शब्दों में रेड पेन से लिखा हुआ था पैपिलरी कार्सिनोमा थायराइड. एंड बीइंग अ साइंस स्टूडेंट आई न्यू व्हाट डज इट मीन, कार्सिनोमा थायराइड. उस वक्त मुझे लगा थोड़ा सा झटका कि शिट, दिस इज कैंसर. और मैं बैठ गई कुर्सी पे, एंड द भैया इज लाइक कि ओ माय गॉड दीदी, अब है सर, आप क्या, आप चलो वापस डॉक्टर के पास. एंड दैट वाज क्वाइट ड्रामेटिक. मतलब ही इज टेलिंग मी, बेटा बैठ जाओ, बेटा पापा कहाँ, माय डैड इज एन आर्मी, वाज एन आर्मी दैट टाइम, सो लाइक बेटा पापा कहाँ है. आई सेड वो कहाँ पर भी है, इट्स ऑल राइट, आई नो क्या है, अब करना क्या है वो बताओ. सो ही वाज आल्सो वेरी सरप्राइज कि तुम इतना पॉजिटिव कैसे हो. ऐश्वर्या, द बेस्ट पार्ट दैट टाइम वाज नोबडी न्यू व्हाट इज कैंसर. तो मेरे लिए आई वॉज नॉट दैट शॉक्ड कि माई गॉड मुझे कैंसर हो गया, क्योंकि पता ही नहीं था ना कैंसर क्या है. फॉर मी इट वॉज जस्ट अ डिजीज कि चलो ठीक है, हो जाएगा ट्रीटमेंट. लेकिन आज लोगों को पता है कैंसर क्या है, और जब आज किसी को डायग्नोसिस होता है तो दे आर इन लॉट ऑफ पेन एंड दे आर लॉट इन शॉक. तो उस वक्त फिर ये बेसिकली हाउ दिस इज हाउ वी फाइंड आउट कि मतलब मुझे कैंसर है, एंड देन वी शिफ्टेड टू मुंबई फॉर द ट्रीटमेंट. So Okay, then basically, this is how I. shifted completely for the Yes, treatment because I along had with to. family then. Yes, yes, they had to because my it was a long term, and मेरे को कैंसर हुए 2 साल हो चुके थे. सो द Yeah. डॉक्टर्स वाज नॉट वेरी श्योर कि जो नोड निकाली थी उसके बाद वो थायराइड में है, कि वो पैराथायराइड में है, या पूरे वो लिम्फेटिक सिस्टम में जा चुका है, या कहाँ जा चुका है. सो देयर इज नो आइडिया. एंड आई वाज लाइक वन ऑफ द फर्स्ट केसेस जिसमें इस टीन एज में कैंसर पता चला था कि कैंसर भी हो रहा है, और वो भी इस टाइप का. फिर वी वेंट टू बॉम्बे फॉर द ट्रीटमेंट बेसिकली. Okay. So I mean, you were so chill about it, but I what was so about chilled. like I was crazy. I knew what is cancer basically, but I was enjoying it because I had that issue कि अपने standard की बीमारी हुई है. what? That young blood. I swear on God, I was in hostel. My parents had gone out from that station, and they were posted somewhere else, and I was staying in hostel doing my graduation with my roommate. I came and they're like, तुझे पता है मुन्ना मुझको क्या हुआ है, मुझे कैंसर हुआ है. And she's like, you're crazy. I said, yes. So I was very happy कि चलो बीमारी हुई तो भी टॉप लेवल की हुई. Maybe this was the spirit, Ashwarya, which kept In me a going, way, which, yeah, yeah, definitely. absolutely. But then I like, was your family, friends, like, all of Yeah, them, my they were friends were crying. पूरा hostel में they were everybody were crying कि shit ये मर. Thing was उन्हें लगा मैं मरने वाली हूँ. Shit ये तो बहुत अच्छी है. You're such a good girl. We have so much fun with you. तू मर जाएगी तो कैसे चलेगा? I was like, oh my god. मैंने कहा मैं नहीं मर रही हूँ. The best was I called up my mom. I said, mom, आपको आना पड़ेगा बॉम्बे. She's like, what happened? I said, मुझे कैंसर हो गया. I was like, सपना, shut up यार. मतलब don't make such jokes. I said, I'm not kidding. So it was a shock for them, कि कैंसर ही हो गया सीधा. yeah, कभी जिंदगी में definitely. बुखार नहीं आया, कुछ नहीं हुआ. एंड अचानक से देन ऑफ कोर्स वी वेंट टू हॉस्पिटल, एंड अगेन पूरी रिपोर्टिंग एंड स्टफ. वहां पे फिर दे वर लाइक वी हैव टू ऑपरेट यू अगेन टू अंडरस्टैंड कि वो Hmm. पूरा फैल चुका है, कितना फैला है, वॉइस बॉक्स में तो नहीं चला गया, एंड ऑल दैट. What made you take the decision of getting treatment in Mumbai? Like, what was the process? Again, अभी पता तो चल गया कि कैंसर हो गया है. But now what? Like, कहाँ जाना है? What doctor? Which treatment is best? Second, third opinion, then like the journey of the whole treatment. Like, ओपिनियन का तो how was टाइम that? नहीं था ना. ओपिनियन का तो टाइम ही नहीं था, बिकॉज जब जिस डॉक्टर ने मुझे दिखाई रिपोर्ट कि आपको ये बीमारी है, Hmm. ही सेड कि बेटा 2 साल हो चुके हैं तुम्हें कैंसर से, ये 2 साल पहले की रिपोर्ट है. तो अब वो 2 साल में कहाँ तुम पहुंचे हो कुछ नहीं पता है. एंड उस वक्त ना ऐश्वर्या सिर्फ कुछ ही जगह पे थी जहां पर कैंसर के ट्रीटमेंट हो रहा था. Okay. एक था टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, एक हमारा जो जिसमें मैंने ट्रीटमेंट लिया, एक पुणे में था. ओनली बिग सिटीज. सो क्लोजेस्ट टू मी वाज मुंबई. So basically for me it was beneficial to go to Mumbai, so we shifted there. Like you said, pretty much not like a wide variety of options कि यहाँ ही mostly दो तीन जगह पे जाना है. And treatment was also, I guess, limited then कि बस this is the way बहुत to ज्यादा follow. लिमिटेड था. इनफैक्ट जो मेरा कैंसर था उसकी जो दवाई होती है, जो ट्रीटमेंट होता है, Hmm. रेडियो एक्टिव आयोडीन दे हैव टू गिव मी, वो इंडिया में अवेलेबल ही नहीं था. Oh. तो आई वॉज ब्लेस्ड. आई फील सो ब्लेस्ड कि वी बिलोंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन आर्मी, who has actually made me live through this cancer. बिकॉज वहां पर जब हम पहुंचे हैं हॉस्पिटल में, वहां पे जो एचओडी थे डिपार्टमेंट के, व्हेन ही सॉ माय केस, एंड उसके बाद व्हेन ही टोल्ड अस कि इसमें क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होने वाला है, उसके लिए ही सेड किसी ये हंगरी से आएगा. उस वक्त हंगेरी वाज अ कंट्री जहां से ये दवाई आती थी.
और उसके लिए भी 2 Wow. महीने लगने वाले थे। इट वाज़ मतलब Oh. अगर वो आज भी ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो आने में 2 महीने लगेंगे। तो दैट प्रोसेस एंटायर थ्रू मतलब आर्मी पहले पास करेगी आपका केस, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट पास करेगी, फिर आप ऑर्डर प्लेस करोगे, फिर वहां से वो आने में, एंड इट्स अ रेडियो एक्टिव मटीरियल, तो इट हैज टू कम विद अ लॉट ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन के अंदर उसको आना था। तो उस पूरे में टाइम लगने वाला था। तो माय डॉक्टर्स हैड गिवन अप द होप, ऐश्वर्या, कंप्लीटली। मतलब वो हमारे को मुंह पे बोल रहे थे कि वी रियली हैव नो आइडिया, बिकॉज हम दवाई मंगवाएंगे एंड विल गिव इट टू हर, बट हमें नहीं पता कि तब तक क्या सीन होगा, कि मतलब कैंसर कितना जा चुका है और सो ही वांटेड टू ऑपरेट मी अगेन। सो पूरा थायराइड एंड पैराथायराइड, टोटल थायराइड एंड पैराथायराइडेक्टमी वाज डन। आफ्टर 6 hours he came out, and आते ही he took my sample and went to Tata Memorial to show कि जस्ट इमेजिन थायराइड अंदर फट के द सेल्स हैव कम आउट। बट आप ये खेलो कि इट वाज माय लक कि वो बहुत ज्यादा नहीं फैला था, मतलब इट हैड टच माय, उसकी रूट्स चली गई थी मेरे वॉइस बॉक्स में। सो वो स्क्रैपिंग करा पूरा साइड से, पूरा स्क्रैपिंग करके उसने निकाला। बट ऑफ कोर्स आवाज भी चेंज हो गई उसके बाद। बट आई वॉज सेव्ड, बेसिकली द कैंसर वॉज आउट। तो दिस इज हाउ अगेन उसके बाद फिर एडमिट रहे। बट सबसे बुरा चीज क्या होता है ना ऐश्वर्या, थायराइड कैंसर का, कि आपकी जो बॉडी के हार्मोन्स है वो आपका थायराइड प्रोड्यूस करता है। वो तो चलो हम Hmm. एल्ट्रॉक्सिन से मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जो मेरे वो क्या पैराथायराइड्स होता है? निकालने, लाइक सप्लीमेंट मेडिसिन थिंग? हाँ, इट्स एल्ट्रॉक्सिन है सप्लीमेंट मेडिसिन, जो आपके थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। वो हम बाहर से भी ले सकते हैं, एल्ट्रॉक्सिन ले सकते हैं, काइंड ऑफ अमाउंट जो भी डिसाइड करते हैं डॉक्टर्स। प्रॉब्लम मेरे साथ क्या हो गई कि मेरे पैराथायराइड्स भी निकालने पड़ गए। वो इसलिए निकालने पड़ गए क्योंकि 2 साल से कैंसर मेरी बॉडी में था। अगर ये रिपोर्ट उसी वक्त पता चल जाती, उसी वक्त पूरा थायराइड जितना भी डिस्ट्रॉयड था वो निकाल दिया जाता, तो पैराथायराइड्स को बचाया जा सकता था। पैराथायराइड्स आपका बॉडी में रेगुलेट करते हैं कैल्शियम। दैट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट जो आपकी पूरी बॉडी की मसल्स इंक्लूडिंग योर हार्ट, इट हेल्प्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, यू नो। मेरी बॉडी में कैल्शियम बनना भी बंद हो गया बिकॉज द ऑर्गन वाज आउट। दे डिड पुट मी ऑन अ लॉट ऑफ कैल्शियम, बट माई बॉडी वॉजंट रिस्पॉन्डिंग। तो मुझे ना क्रैम्स आ जाते थे, होल बॉडी यूज टू टर्न इनटू स्टोन। ये एपिसोड्स मुझे ऑपरेशन के तीसरे दिन ही स्टार्ट हो गए। तो एवरी थर्ड और फोर्थ डे माई बॉडी वॉज गेटिंग स्टोन, यू नो। तो कैंसर तो चला गया, इस चीज को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसके लिए फिर कैल्शियम ग्लूकोनेट के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, अगर इंजेक्शन 15 मिनट में नहीं मिल रहा है तो आई कैन डाई एंड स्टफ, बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ गई। एंड दैट वाज द टाइम व्हिच आई वांट टू मेंशन ऐश्वर्या, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी। आई वांटेड टू जॉइन आर्मी एज एन ऑफिसर। आई बिकेम मेडिकली अनफिट। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा शौक था कि जो सारी जिंदगी एक सपना देखा था कि आर्मी ऑफिसर बनना है, वो यहाँ खत्म हो गया आज, बिकॉज मेडिकली अनफिट हो गए। कैंसर तो पीछे रह गया। एक एस्पिरे एक कुछ होता है ना, आप सारी जिंदगी आप ये बनना चाहते हो, दैट वाज टीन एज एंड यू वांटेड टू बिकम समथिंग, वो आपके डॉक्टर सामने बोल रहे हैं कि भाई यू कांट डू दिस नाउ, दैट वाज अ बिगेस्ट शॉक टू मी। तो वो मुझे बहुत बड़ा सेटबैक उस वक्त लगा था। And तो that उसके बाद must फिर have ट्रीटमेंट been शुरू so हुआ, difficult. दवाइयाँ आई, अल्ट्रा मतलब वो शुरू करी, आयोडीन दिया, आयोडीन देके वो 2-2 3-3 दिन मुझे 0 डिग्रीज पे रख देते थे, एक अलग आइसोलेटेड रूम में। Oh. आपको टैबलेट, या यू हैव, इसका ट्रीटमेंट ऐसा होता है कि दे गिव यू दिस टैबलेट व्हिच हैज रेडियो एक्टिव आयोडीन, सो यू swallow it, and then they'll keep you in a very a room which is far away, from other hospital, this thing, because जो radiations आ रही हैं, those radiations themselves can cause cancer. So it is from stomach, it is coming out, so it is going to kill my cancer जो मेरे गले में है, and it is coming out of my body. But if these radiations come back to my body again, can cause cancer. तो आपको बहुत ठंडे एनवायरनमेंट में रखा जाता है कि बॉडी से निकलते ही मर जाए रेडिएशन। तो Mm. हाँ, तो 2-2 3-3 दिन तक, मतलब क्योंकि मुझे 2-3 बार ये दवाई दी गई है, मेरा कैंसर बार बार वापस आ रहा था। तो उसमें 3 दिन रख देते थे ठंड में, ठंड अलग लग रही है और कोई पास में भी नहीं आ रहा है, यूर अवे, कांच के दरवाजे लगे हुए हैं 3-4, जेल जैसी फीलिंग, और दूर से कोई बात कर रहा है, खाना खाओगी? नहीं, उससे नहीं खाना है मुझे, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे ठंड लग रही है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, टीनेज थी, ठंडा कमरा, लॉट ऑफ पेन एंड लॉट ऑफ सफरिंग। Yeah, I can या only imagine. So, yeah, I think somewhere, if you could talk about ki, what could have been better, maybe if agar, like you mentioned, ki, if they just checked the report thoroughly before, and like I'm sure this must have happened with others as well. That दिस हैपेंस अ लॉट। yeah, so That is why we say doctors are practicing.
they are practicing and human error is always there. Hmm. तो कहते हैं ना कि it is very important for patient to know everything. Awareness is very important. This is what I do now. This is what is my, I've taken it professionally Hmm. also. Counseling is one, but awareness, generating awareness amongst everybody, अगर मुझे पता होता कि ऑपरेशन के बाद कोई चीज निकाली गई है और उसे टेस्ट के लिए भेजा गया है तो मुझे उसकी रिपोर्ट लेनी है, तो मेरे लिए चीजें बहुत अलग होती, my life would have turned up very differently and I'm sure turned up very well. मुझे ये जो कैल्शियम का इशू आ गया है कि एवरी टाइम आई एम स्कैर्ड कि पता नहीं कब मेरा बॉडी कैल्शियम छोड़ देगा और कब मुझे होल बॉडी क्रैम्स आ जाएंगे, एंड आई रियली हैव टू बी क्लोज टू हॉस्पिटल एवरी टाइम. आई कांट ट्रैवल अलोन, आई कांट ट्रैवल समवेयर जहां पर हॉस्पिटल 15 मिनट की प्रॉक्सिमिटी पे नहीं है. आई कांट ट्रैवल ऑन रोड्स जिसमें ट्रैफिक है. सो आई हैव टू लुक फॉर, घर भी मुझे हॉस्पिटल के पास ही लेना है, वर्क प्लेस भी मेरा हॉस्पिटल के पास होना चाहिए. दिस लॉट ऑफ थिंग्स, रिस्ट्रिक्शन, एंड आई वॉज अ पर्सन जो ग्रेजुएशन में हम लोग नासिक में थे, नासिक में बहुत पहाड़ है तो हम ट्रैकिंग पे, आई यूज टू बी अलोन ऑन ट्रैकिंग. तो एकदम से लाइफ ही घूम गई पूरा, कि आप अकेले अब रह ही नहीं सकते, आप ट्रैवल ही नहीं कर सकते. आई वाज अ पर्सन हु वांटेड टू ट्रैवल अलोन, ट्रैवल वर्ल्ड, एंड सब डब्बे में बंद. It's one mistake of someone, in my entire life में, वो दुःख होता है. वो गलती ना हुई होती, तो आज मैं कैल्शियम एल्ट्रॉक्सिन इस टाइम, लोगों को थायराइड प्रॉब्लम भी है, हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपरथायराइडिज्म है, दवाइयाँ खा के एवरीबॉडी इज सॉर्टेड. बट मेरे कैल्शियम जो मेरा पैराथायराइड्स निकालने पड़े, उसकी वजह से मेरा लाइफ पूरा बदल गया मेरा. दैट्स इज व्हाट आई फील कि वो गलती ना हुई होती तो आई वुड हैव बीन बेटर, यू नो. Yeah, that's what we're trying to ensure, that we यस. try to help people be more aware, try to help या. doctors be more systematic, so that such errors can be avoided, and so many other एब्सोल्युटली. lives can be saved. से आज भी आई एम वर्किंग विद कैंसर पेशेंट्स फॉर लास्ट 8 years नाउ, है ना. तो माय मोटिव टू कम इनटू दिस फील्ड, ऐश्वर्या, आई वाज, आई वाज एमबीए, आई डिड माय बीएड, आई डिड माय साइकोलॉजी, आई डिड माय सोशल वर्क काउंसलिंग, आई डिड लॉट ऑफ डिग्रीज, सब कुछ वर्क भी करा, मल्टीनेशनल कंपनीज में एज एन एचआर भी काम कर लिया, पढ़ा भी लिया, सब कुछ कर लिया. बट समवेयर आई वाज लाइक यार, आई हैव टू कम बैक टू कैंसर, बिकॉज जो गलतियां मेरे साथ हुई, आई डिड नॉट वांटेड कि ये सामने भी हो. तो अगर मैं इस फील्ड में जाके अगर किसी 10 पेशेंट्स की भी जिंदगी बचा पाऊं थ्रू माई एक्सपीरियंस, थ्रू माई जर्नी, एंड आई हैव लर्न अ लॉट, एंड आई हैव बीन वर्किंग विद डॉक्टर्स फॉर सो लॉन्ग, तो इन्फॉर्मेशन आ जाती है, यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स. तो अगर कहीं पर भी मैं कोई भी गलती अगर हो रही है, अगर मैं वो पकड़ लूं और इफ आई कैन सेव दैट पर्टिकुलर पेशेंट, तो आई फील कि मैंने, आई हैव डन समथिंग इन माई लाइफ. मतलब Um, अगर मैं जिंदा हूं तो इट्स वर्थ इट, यू नो. I definitely. I think you must have already helped so many people in such ways that, like, we can't even. Let's talk about that. So, when, I think, do you remember the time when you were like, okay, I think I should get into counseling, and especially cancer counseling, and even like tell our viewers as well as what does it take to be a cancer counselor, what is the role, and what are the challenges? Let's talk about that. Basically, my husband is an army. So, we have this transferable job. So I left my HR company and I started working with schools. I loved being a teacher. I taught, kids from third to ninth. But when I shifted to Bathinda, that time also I joined a school as coordinator and teacher. But it's been already 5-6 years हो चुके थे मुझे ना पढ़ाते हुए. I was teaching and I was happy, but somewhere na Aishwarya, I wasn't very satisfied. See, there's a difference between, I tell everybody this, there's a difference between happiness and satisfaction. Happiness is very subjective, कि मूवी देख ली खुश हो गए, कहीं कुछ अच्छा खा लिया खुश हो गए, एक नया ड्रेस ले लिया खुश हो गए, घर बना लिया खुश हो गए. बट वेयर इज द सेटिस्फैक्शन? आज मैंने एक नया घर बना लिया, मैं घर में बैठी हूँ, आई एम हैप्पी. बट वो हैप्पीनेस कब तक रहेगी? कुछ टाइम के बाद तो वो खत्म होने वाली है ना, इट विल फेड अवे. बट द सेटिस्फैक्शन ऑफ व्हाट यू डू, in it can be for anybody, it can be anything. For a person like for you, this raising up, this build up that you're bringing up, maybe this will give you satisfaction for a very long time. Happiness, yes, but this is going to give you satisfaction when you'll see the results, that so many people are being benefited. Same way for me, happiness was all around me, but
if I feel that today if I am to die and I want to look back to my life कि what have I done, what I have given to society, तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा था. And I was not very happy with that. That I really wanted to do something meaningful because मेरे को 7 years तो मुझे सिर्फ ट्रीटमेंट में ही लगे जिसमें मेरा 3 से 4 बार कैंसर वापस आया. अगेन आई मैं कहीं पर भी मेरे डैड पोस्टेड थे, हमें फिर वापस बॉम्बे जाना है, फिर एडमिट होना है, फिर दवाई खानी है, फिर वो 3 दिन के 3 days ऑफ आइसोलेशन के थ्रू जाना है. उसके बाद कैल्शियम की वजह से इतनी इश्यूज, कैल्शियम नहीं टिक रहा है, इंजेक्शन पे इंजेक्शन जा रहे हैं, तो इतना स्ट्रगल देखा है मैंने. तो मेरे को था कि यार वो स्ट्रगल, एंड यू विल नॉट बिलीव ऐश्वर्या, व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दिस ट्रीटमेंट, that time I was just 19 or 20, Yeah. that time when I used to go to this Tata Memorial Hospital for certain tests जो सिर्फ वहीं होते थे रेडियो एक्टिविटी के, वहां पे I used to look at these patients जो कैंसर वार्ड में होते थे, और अंडर प्रिविलेज्ड पीपल बेचारे कहीं पर भी बैठे हुए हैं, कोई उन्हें बता नहीं रहा, कोई पूछ नहीं रहा क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, पैसा कहाँ से आएगा, कुछ नहीं पता. और कैंसर सुनकर ही वो इतने मतलब डरे हुए हैं कि मतलब उन्हें लग रहा है कि अब तो हमारा बच्चा या हमारा फैमिली मेंबर खत्म ही हो जाएगा ना. वो पेन जब मैं देखती थी ना, वहीं पर मुझे लगता था कि थैंक गॉड आई एम सो प्रिविलेज्ड कि यार मेरे पास बहुत सॉर्टेड ट्रीटमेंट है, कि एक इंडिविजुअल कमरा है, अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे नर्स सिस्टर्स हैं, और सब कुछ बहुत है, अच्छा खाने को है. आई वाज सो ब्लेस्ड. बट जब उनको देखती थी ना, मुझे लगता था यार अगर मैं बची, क्योंकि उस वक्त मुझे डॉक्टर्स कहते थे कि हमें कोई गारंटी नहीं है. एंड आई यूज्ड टू आस्क माय डॉक्टर सामने कि भाई आप मुझे बताइए कि अंकल सीन है, तो कहते थे बेटा कोई पक्का नहीं है, वी डोंट वांट टू कीप यू इन दिस थिंग, कि हमें नहीं पता हाउ विल योर बॉडी टर्न अप, एंड सो एंजॉय योर लाइफ, जितने दिन है एंजॉय करो. तो आई यूज्ड टू टेक वन डे एट वन टाइम, आज जिंदा हूँ मजा आ गया, आज जिंदा हूँ मजा आ गया, ऐसे. तब आई हैड प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि अगर मैं जिंदा बची, तो आई विल कम बैक टू सोसाइटी एंड आई विल वर्क फॉर कैंसर दैट टाइम. बट फिर टीन एज आगे बढ़े, कॉलेज करा, शादी हो गई, आगे बढ़ गए. जब बठिंडा में मैं आई हूँ और आई वाज नॉट वेरी हैप्पी, देन माय हस्बैंड ही टेल्स मी कि सपना तेरे बस का नहीं है टीचिंग, जस्ट लीव इट, गिव योरसेल्फ टाइम एंड सी व्हाट यू वांट टू डू. देन आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स, ही इज अ डॉक्टर, तो ही सेड कि यार तेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, इतना यू हैव सीन पेन फ्रॉम पेशेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू. डॉक्टर्स तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पर टू पेशेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू यू शुड डिस्कस, यू शुड टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंसेस एंड टेल पीपल जो इस जर्नी के थ्रू जा रहे हैं. दैट टाइम आई डिसाइडेड कि चलो ऐसा कुछ करते हैं. तो आई स्टार्टेड विद मैक्स हॉस्पिटल बठिंडा. आई वेंट टू द एचओडी एंड आई टोल्ड हिम. तो बाकी भी, और आई वेंट टू अदर हॉस्पिटल, उनको समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या कह रही हूँ, कि मैम आप क्या बात करोगे, आप क्या काउंसिल करोगे, काउंसिल का वर्ड ही नहीं आया था तब, तो सिर्फ बात करनी थी कि आई वांटेड टू हेल्प देम आइदर फाइनेंशियली, इमोशनली, व्हाटएवर. देन दे सेड कि चलो ठीक है, एक हॉस्पिटल ने बोला कि मैम चलो आप मिलो, लेट्स सी हाउ दिस थिंग्स टर्न अप, बिकॉज उनके पास बहुत पेशेंट्स आते थे जो बहुत रोते थे जब वो राउंड्स पे जाते थे, तो यूज्ड टू क्राई अ लॉट. एंड ही यूज्ड टू टेल कि मुझे ना समझ नहीं आता, मैं इनको बोलूँ क्या, अब बीमारी तो है, इलाज तो कराना पड़ेगा, तो मैं इनको चुप कैसे कराऊँ, मुझे समझ में नहीं आता. तो मैंने कहा वो आप मुझे दे दो, लेट मी टॉक टू देम. यू नो 1 डे 2 डे आई स्टार्टेड गोइंग, और जब लोगों को मैं जाके बताती थी कि मुझे भी था कैंसर, आप क्यों घबरा रहे हो, धीरे धीरे बात करनी शुरू करी, तो पता चला कि लोग इतने जम्बल्ड है, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या ट्रीटमेंट है, क्या दवाइयाँ चल रही हैं, दवाइयाँ कहाँ से आएंगी, टेस्ट कहाँ होंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या क्या है. there's a lot of government schemes that are also there. It's a great help for any patient. पता ही नहीं है उन्हें, और बताने वाला कोई नहीं है. तो धीरे धीरे मैंने वो चीजें बतानी शुरू करी, तो उससे चीजों को बहुत क्लियरिटी आने लगी पेशेंट्स को. तो दे स्टार्टेड फीलिंग कि नहीं यार, देयर इज समबडी वी कैन लुक अप टू, कि भाई अगर सपोज करो पैसे नहीं है, तो दे यूज्ड टू कॉल मी कि मैम इस फलाने टेस्ट के पैसे नहीं है, तो आई यूज्ड टू, मैं करा देती हूँ, हमें ये चीज चाहिए तो चलो ला देती हूँ दवाई. तो ऐसे छोटा सा शुरुआत हुआ. फिर क्योंकि पेशेंट्स बढ़ गए, तो मैंने अपने नेबर्स को, अपने फ्रेंड्स को बोला कि भाई आप इसका टेस्ट करा दो, या आप इसकी एमआरआई करा दो, या आप इसको दवाई ले दो. तो उन्होंने भी शुरू करा कि ठीक है यार क्या फर्क पड़ता है. वहां से शुरू हुआ. और उसके दैट वाज 8 years बैक, एंड टुडे इट्स बीन 8 years वी आर डूइंग दिस. मतलब अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, या कोई उसके लिए मतलब धक्के खाए हमने ऑफिस में कि इनका आधार कार्ड बन जाए या इनका राशन कार्ड बन जाए, इतनी छोटी छोटी हेल्प, ताकि उनको वो गवर्नमेंट स्कीम्स मिल जाए. ये इस बेसिक लाइन की हेल्प भी हमने करी हुई है. तो पैसा जो भी स्टार्टेड रेजिंग फंड्स फ्रॉम माय आर्मी फ्रेंड्स, एंड स्टार्टेड गिविंग देम बिल्स कि भाई टोटल ट्रांसपेरेंसी, ये रहा पेशेंट, ये रहा उसका टेस्ट, और ये रहा बिल, और ये रहा पैसा, और क्लैरिटी. तो उससे मतलब धीरे धीरे आगे बढ़े हैं. तो पूरा जर्नी. So, like, that is such a heartfelt thing to be done for so many people who would be like,
People used to call me Absolutely crazy. clueless. पीपल यूज्ड टू कॉल मी क्रेजी, माय फ्रेंड्स यूज्ड टू कॉल मी क्रेजी। अच्छी खासी 50,000 की नौकरी छोड़ के तू अपना डीजल सड़ा के पता नहीं कहाँ धक्के खा रही है, वाज द लाइन ऑफ माय फ्रेंड्स एंड माय रिलेटिव्स, यू नो, व्हाट डू यू थिंक यू आर ट्राइंग टू डू? आई सेड आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग, बट आई नो आई हैव टू डू दिस, एंड आई हैड नो आइडिया ऐश्वर्या मैं कहाँ जा रही हूँ, कि मतलब लोग मुझसे बात करेंगे भी कि नहीं करेंगे, उनको हेल्प चाहिए होगी कि नहीं चाहिए Hmm. होगी, यू नो, उसके बाद मैं पूरा करियर छोड़ रही हूँ, आगे क्या होगा, यू नो। बट जैसे जैसे आप हॉस्पिटल के कांटेक्ट में आए, डॉक्टर्स को समझ में आने लगा, एंड दे स्टार्टेड कॉलिंग मी कि नहीं मैम आप आओ, यू नो, दे अंडरस्टूड व्हाट आई एम डूइंग, द पेशेंट्स अंडरस्टूड व्हाट आई एम डूइंग। तो फिर वहां से हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, यू नो, आगे बढ़ते बढ़ते तो आज मैं चंडीगढ़ में 32 गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसके उनके एचओडी के साथ काम कर That's रही हूँ, एंड दिस amazing. इज टोटली फ्री ऐश्वर्या, दिस इज नथिंग आई एम टेकिंग फ्रॉम पेशेंट्स, और आई एम दिस टोटली सोशल वर्क, मतलब हम सरदार है ना, हम पंजाबी है, हमारे लिए सेवा, हमारे लिए मतलब सेवा इज द बिगेस्ट थिंग। तो मैं जिंदा हूं तो आई वांटेड कि मैं सेवा करूं आगे पेशेंट्स की, तो दिस इज एंटायरली दिस थिंग, मैं This अपना ही is पैसा लगा रही हूँ, किसी से ले नहीं रही हूँ। like really like this world needs people like you. Like I think in today's world, if there is a scarcity बहुत of बहुत है ऐश्वर्या, kindness, बहुत लोग हैं जो सेवा कर रहे हैं, कर मैं आई एम नथिंग, मैं तो आई एम अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट। मुझे कईयों ने बोला कि आप अपना एनजीओ रजिस्टर करो, आप यू नो, बट एनजीओ रजिस्टर करने के लिए जितना पैसा लग रहा है, जितने लोग चाहिए, उसमें मैं पेपर वर्क में ही फंसी रह जाऊंगी ना यार। तो ऐसे मुझे नहीं पढ़ना इन सब चीजों में, मुझे नहीं अपना एनजीओ कोई बहुत बड़ा एनजीओ क्रिएट करना है कि मेरा कोई नाम हो, उस चीज से थोड़ी शुरू करा था। अगर मैं पेपर वर्क में घुस जाऊंगी, एक एनजीओ एक इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज करने में लग जाऊंगी, तो फिर ये कौन करेगा? तो ऐसा इट्स ओके, अगर आप your लोगों को मुझे name हेल्प will करनी है आप live. करो। No, नो definitely. I mean, नहीं। I think the patients and doctors, everyone who is seeing the kind of help that you're providing, they themselves will never forget you and your name will दे डू live लव for मी। ages. Of course, there is no question about it. हाँ, So once you started talking to people and like everyone understood what your aim was, you must have thought of okay to kind of make this a little more official, professional. So you did study more about this, right? आई स्टडी आई मुझे फिर मेरे ही मतलब ऑन्कोलॉजिस्ट जो थे, जिन डॉक्टर साथ में काम कर रहे थे, दे सेड कि मैम आप डिग्री कर लो काउंसलिंग की, बिकॉज यू अंडरस्टैंड ना क्या एस्पेक्ट्स होते हैं काउंसलिंग के, एंड उसमें तो दे पुट मी इनटू द स्टडिंग ऑल्सो। तो मैंने अपनी शुरू कर दी, डिग्री भी शुरू करी। डिग्री करने का फायदा ये होता है ना ऐश्वर्या, आपको बहुत सारे एस्पेक्ट्स क्लियर हो जाते हैं, यू नो, ह्यूमन इमोशंस अंडरस्टैंड आप कर पाते हो, देयर आर लॉट ऑफ थेरेपीज जो हम साइकोलॉजी में भी यूज करते हैं, बहुत सारी थेरेपीज होती हैं, और बहुत सारा आपको नॉलेज पता चलती है, तो योर योर होराइजन इंक्रीजेस ना, आपका एरिया ऑफ वर्क इंक्रीज कर जाता है। बट एट द एंड ऑफ द डे एजुकेशन गिव्स इट्स रोल, बट जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस मुझे मिलते हैं लोगों के साथ काम करने में, और जो मैंने अपना जर्नी किया है कैंसर का, वो मुझे बहुत हेल्प करता है। कि जितने भी आज तक मैंने पेशेंट्स देखे, हर एक पेशेंट के साथ एक डिफरेंट डिफिकल्टी होती है, तो आप उससे सीखते हो, तो इट्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग बेसिकली गोइंग ऑन। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग से ही सीख सीख के आगे बढ़ रहे हैं। Yeah, and it helps. No, I mean, one side it's like your own experience of what you went through as a यस, patient. यस, Like, and you look at what someone is going through, and you try to understand and apply whatever you know. And education also, like so. yes, yes, education does help, there's no doubt about it, it gives you a degree to at least officially also, if you have to show somewhere that on what basis you're doing this, you know, so the degree helps you. Yeah, because And I mean, counseling and therapy also is a very professional, legit oh, profession, and yes, medically, like it's important that you need to be certified by uh, yes, officials that. अभी थेरेपी absolutely. के नाम पे तो लोग आजकल कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी कहते रहते हैं, एंड Hmm, सो इट्स hmm, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी थेरेपी कर रहा है hmm, टू हैव दैट काइंड hmm, ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस hmm, कि hmm, okay, I am guiding someone through the right way, and I hmm. have tools to understand emotions in a better way than normal humans can understand. Sometimes लोग कह रहे थे कि थेरेपी वगैरह की क्या जरूरत है, दोस्तों से बात कर लो, फैमिली से बात कर लो, which I No, mean, these are two of different course, things. it's one thing to like have like a nice chat with someone, but it's an entirely different thing to go to a professional who can understand Absolutely. what is wrong with you. So you definitely took a very right step. And what all did you study? Because I was mind blown to hear the kind of efforts you have taken.
मेरा तो फिर अगर मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँ तो फिर मैंने एमबीए भी करा है, मैंने बीएड भी करी है, मैंने साइकोलॉजी भी करी है, मैंने सोशल वर्क काउंसलिंग भी करी है। And you said you got some special cancer हाँ, certifications. कुछ सर्टिफिकेशंस भी हैं, सर्टिफिकेशंस भी हो करते What रहती हूँ मैं what बीच-बीच में exactly जो are भी those? मुझे दीज़ आर कि आप बेसिकली हाउ टू स्पेशली काउंसल कैंसर Okay. पेशेंट्स। हाँ, So there's a एंड whole देन गिव separate मोर नॉलेज thing. अबाउट ना मतलब पूरा कुछ सेपरेट नहीं है। जैसे आपको फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी थेरेपी की आपने सर्टिफिकेशन करनी है इंडिविजुअली, अगर आपको Hmm. सीबीटी की करनी है तो आप उसकी आप सर्टिफिकेशन कर लेते हो। और अगर आपको पर्टिकुलरली किसी और थेरेपी की करनी है तो इंडिविजुअल देयर इज लॉट ऑफ सर्टिफिकेशंस, यू गो ऑन नेट यू विल गेट हंड्रेड ऑफ थिंग्स। Like you said, you already had completed so much of education, and just to आई get लव into this. स्टडिंग, आई जस्ट लव स्टडिंग। आप मुझे आज कह दो, अभी अभी मेरा अभी सोशल वर्क काउंसलिंग का डिग्री खत्म हुआ तो उसमें मुझे एवरीबॉडी सेइंग अब नेक्स्ट, माय हस्बैंड आस्किंग अब हो गया कि और पढ़ना है? ऐसे नहीं, पीएचडी कर लेते हैं। ही इज लाइक, ओह माय गॉड, यू हैव ऑलरेडी डन 2 मास्टर्स, व्हाई डू यू वांट टू डू पीएचडी? आई सेड व्हाई नॉट, आई रियली वांट टू। सो लेट्स होप Of कि इफ आई course, गेट why इनटू not? Why not? Like, just keep going on. It's like people या collect stamps and coins. Like, I think you आई want to कलेक्ट collect degrees. बुक्स। Oh, that's fine. That's fine. For people who want to get into this, can you explain like what is the role like? What does your day look like? How does life look like? What is your role like? Can you explain a little? There is nothing as such. There's no position that is called cancer special counselor. It's Okay. counseling. Okay, you do your psychology and you'll become a counselor. है ना? You do social work counseling, you'll become a counselor. That is not the thing. अभी कोई specifically that nobody has catered for that specific area. Okay, मुझे help हो जाती है counseling का degree and my knowledge of my own journey, knowledge coming from the cases I am doing every day, knowledge being with the doctors, understanding cancer more every day, all these things are giving me this. Therapies अगर हमें किसी patient को देनी है वो तो anybody can give that. But why I say that I work good with cancer patient is because I over a period of time I have gained the knowledge. I have always worked with cancer specialists. और जब हम कोई भी पेशेंट यहाँ पे 32 में भी अगर हम कोई पेशेंट देखते हैं तो माय एचओडी ही लुक्स एट द रिपोर्ट्स फर्स्ट एंड देन द पेशेंट कम्स टू मी एंड आई ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज एंटायर डे एज अ पेशेंट, Hmm. नाउ फिजिकल एंड मेंटल बोथ। अब फॉर एग्जाम्पल कैंसर, कोई भी किसी भी टाइप का कैंसर हो, इट्स अ लॉन्ग टर्म डिजीज, मतलब आपको सालों लग जाते हैं इसकी ट्रीटमेंट में। फिर भी आप हॉस्पिटल, मतलब अगर आप एक बार कैंसर पेशेंट हो गए हो तो आप बहुत लंबा टाइम तक आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। ट्रीटमेंट में ही आपको 4-5 साल लग रहे हैं, ठीक है, बार बार इफ कैंसर इज कमिंग बैक, उसके बाद आपको फॉलो अप पे रहना ही रहना है। दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू मेक अ नोट हियर। any cancer survivor, any person who has gone through cancer treatment has to understand the follow up system first. जैसे ही आपका ट्रीटमेंट खत्म होता है आपको हर महीने बुलाया जाएगा for a 6 months or so. After 6 months you will be called after 3 months or 2 months. After 1 year or 2 years you will be called every 6 months. Depending upon your cancer, then you have to at least get yourself checked by your oncologist every year till you die. ये वाला ब्रैकेट है जहां लोग गलतियां करते हैं। ट्रीटमेंट में तो कर लेते हैं कि डॉक्टर ने बुलाया है तो जाना है, हर 21 दिन बाद कीमो लग रही है या हर 15 दिन बाद कीमो लग रही है, सो पीपल आर कमिंग। प्रॉब्लम इज जब दिन हम कहते हैं कि ओके योर कीमो इज ओवर एंड नाउ विल सी यू आफ्टर अ मंथ, दे अज्यूम कि ट्रीटमेंट खत्म हो गया है, आई एम कैंसर फ्री एंड आई डोंट हैव टू कम बैक नाउ। तो क्या हुआ, डॉक्टर ने बोला है 1 महीने बाद आना है तो इट्स ओके, मैं तो ठीक हूं। ये एरिया है जहां पर लोग गलती करते हैं। फॉलो अप आपको सारी जिंदगी रखना पड़ता है। अब फॉलो अप होता क्या है? फॉलो अप का मतलब ये होता है कि कैंसर कहीं वापस तो नहीं आ गया। ये चेक रखने के लिए हमें एक स्केड्यूल बनाना पड़ता है कि हर पहले 1-1 महीने में, फिर 2-2 महीने में, फिर 6-6 महीने में, फिर हर साल। बिकॉज आपकी जिंदगी में कभी भी अगर बाय चांस कैंसर वापस आ रहा है तो हमें जल्दी पता चल जाए। ये गलतियां लोग करते हैं, पेशेंट सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। और उसकी वजह से जब वो दोबारा कैंसर आता है तो वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है जब तक उन्हें पता चलता है। देन ही दे गेट इनटू डिप्रेशन कि यार इतना ज्यादा कैंसर कैसे हो गया है, अब और ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा ना, ऑल दैट स्टफ। तो ये जो भी नॉलेज मैंने गेन करी है, शायद इसमें कोई डिग्री नहीं है स्पेसिफिकली। आई डोंट नो, इन फ्यूचर टाइम आना भी चाहिए दैट Hopefully. समथिंग, सम डिग्रीज हु स्पेशलाइजेस इन सम डिजीजेस।
तो ये मेरे को ऑन द वर्क ट्रेनिंग आप कह लो, वर्किंग विद डॉक्टर्स एंड स्टफ। बाकी जो हमें काउंसलिंग के लिए थेरेपीज चाहिए होती हैं वो तो हमें यू कैन गेट इट फ्रॉम डिग्रीज ऑफ योर साइकोलॉजी। So you were talking about how during the treatment you had to be in like very cold environments, and of course there's many things कि different people, कुछ लोग चल नहीं पाते, सो नहीं पाते, खाना नहीं खा पाते. There are many things that साइड it इफेक्ट्स। yeah. Do you remember any hacks that you used to use that used to help you like make you feel better? It could be like talking to someone or exercise or some kind of entertainment, anything that you remember that helped you do better. And like maybe कुछ छोटी छोटी चीजें, small victories that used to happen like as your treatment proceeded, which made you like feel better. Like, can you share these then? ऐश्वर्या, आई होप कि उस वक्त इस टाइप के काउंसलर्स हमारे पास होते जो हमें ये Mm. सिखाते कि कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ये चीजें। जैसे आज मैं अपने पेशेंट्स को जो बताती हूँ कि आप पूरा दिन टेस्ट करा रहे थे, आपने ब्लड टेस्ट कराए, आप किसी एक एमआरआई के थ्रू गए एंड यू आर सैड, यू फील वेरी सैड, स्पेशली अगर आप टीनेजर हो या आप यू आर वर्किंग एंड स्टफ, तो आपका ना बहुत कुछ जिंदगी में छूटता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका कॉलेज छूट रहा है, अगर आप वर्क कर रहे हो तो आपका वर्क प्लेस छूट रहा है, आपके फ्रेंड्स छूट रहे हैं, क्योंकि आप एक अलग लाइन में हो, लोगों से जिंदगी आगे चल रही है, आप एक अलग डायरेक्शन में जा रहे होते हो। उस वक्त मुझे किसी ने नहीं बताया, जो मैं आज बताती हूँ, कि पूरा दिन चाहे हॉस्पिटल में बिता के आए हैं, रोए हैं, दुखी हुए हैं, होना है, बट शाम को ना मेक योर इवनिंग्स ब्यूटिफुल। डोंट क्रिब अबाउट इट, डोंट क्रिब। हम शाम को क्या करते हैं ना, बैठ के उन्हीं चीजों के बारे में बात करते हैं और दुखी होते रहते हैं। आई मेड दिस मिस्टेक्स, विच आई नाउ काउंसल माई पेशेंट्स, कि आप पूरा दिन कुछ भी करके गए हो ना हॉस्पिटल से, आपने शाम को जाके जस्ट डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी, टॉक टू योर फ्रेंड्स, watch a nice series, watch TV, go for a walk, do something which make, or just have a nice cup of tea or coffee, sit alone and, something which just fades away जो भी सुबह हुआ, because वो कल सुबह फिर होना है। तो अगर आप उस सर्कल से बाहर ही नहीं आओगे, और ये सर्कल बहुत लंबा चलने वाला है, तो एट द इन द इवनिंग कट दैट सर्कल, कम आउट ऑफ इट, रिलैक्स एंड एंजॉय। if I go back to my times, I used to cry a lot because for me it was too much. I was in graduation first year, जहां पर सब लोग कॉलेज में एंजॉय कर रहे हैं और मुझे फोन आ रहे हैं Hmm. कि आज हमने पता है ये मूवी देखी, आज हमने ये करा, एंड आई एम सिटिंग देयर इन हॉस्पिटल, एंड सबसे पहला क्वेश्चन जो हम करते हैं वो हम खुद से ये होता है कि मुझे क्यों हुआ, वाई डिड दिस थिंग हैपन टू मी। और उसका ना ऐश्वर्या जवाब कोई नहीं देता है। Nobody gives you the answer of that question कि why did this happen to you। तो जब कोई जवाब नहीं देता है ना, तो आप और दुखी होते हो कि मेरे सारे, and everybody was turning up so beautiful and I was the one with the big car and थका हुआ body, and it was sad। बट उसमें भी आई डोंट नो मेरा नेचर वैसा था या आई गॉड नोज व्हाट, उसमें भी आई यूज्ड टू फाइंड हैप्पीनेस। माय हॉस्पिटल वाज ऑन द सी फ्रंट, मतलब सी फेसिंग था, तो आई यूज्ड टू लुक एट दैट स्मॉल स्मॉल बोट्स जो वहां से गुजर रही होती हैं, एंड माय पेरेंट्स वर द बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम, फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स यूज्ड टू कम, मेरे कॉलेज से यूज्ड टू कम एंड विजिट मी एटलीस्ट 15 दिन में एक बार। तो लाइफ वाज गोइंग ऑन। बट आज अगर मैं पीछे जाके देखूं ना, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत टाइम वेस्ट करा, मैंने रो के मैंने बहुत टाइम वेस्ट करा, दुखी होकर क्वेश्चंस कर करके खुद को, डॉक्टर से क्वेश्चंस कर करके मेरे को क्यों हुआ, मुझे क्यों हुआ, एंड नोबडी हैज आंसर टुडे ऑल्सो। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये होता है वो, मैम मुझे ये क्यों हुआ, मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। सब इंडियंस ना, वी आर इंडियंस, Yeah. वी से कि ये हमारे कर्मों का फल है। एंड आई से प्लीज, कर्म और कैंसर साथ में नहीं चलते हैं। कैंसर हैज इट्स ओन रीजंस, नॉट योर कर्मा, तो क्योंकि हम वी थिंक लाइक दैट ना। Hmm. तो Yeah. मुझे ये चीज खुद को बतानी है, मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया ऐश्वर्या, रो के दुखी होके, ठीक है, स्टिल आई यूज्ड टू गेट अप, आई यूज्ड टू, बिकॉज मैं अकेली थी ना, आई वाज अलोन टू कैरी माई सेल्फ। मैं मॉम पे कितना, माय मॉम वाज सो अपसेट, वो और अलग जाके रो रही है, माय फादर इज क्राइंग अलग से, माय ब्रदर आपस में भी नहीं रो रहे हैं, अलग अलग जाके रो रहे हैं, कमिंग इन विद अ वेरी ब्रेव फेस, कि अरे क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, और सबको पता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, यू नो तो one lesson from here is individually don't fight the battle, do it together।
sit together, cry together, talk to each other, you know, because communication is a power. हम बात ही नहीं करते हैं. पेशेंट दिखा रहा होता है, नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूं. नहीं, आप ठीक नहीं हो, आप बोलो कि मैं ठीक नहीं हूं. पेरेंट्स आर वेरी स्ट्रांग, नहीं नहीं तो क्या हुआ, सब ठीक है. नहीं, वो भी उतना ही टूट रहे हैं, वो भी उतना ही मेस्ड अप है. सो सिट टुगेदर, टॉक टू ईच अदर, मेक फ्रेंड्स. हॉस्पिटल में हो ना, मेक फ्रेंड्स. जितने हम, बिकॉज व्हाट आई सी टुडे ना ऐश्वर्या, बिकॉज मैं ये करती थी, मेरे बेड में जितने जितने पेशेंट्स होते थे ना मेरे रूम में, मैं सबके साथ दोस्ती कर रखी थी. आई वॉज फ्रेंड्स विद माई सिस्टर्स नर्सेज, यू नो, आई वॉज फ्रेंड्स विद जो आंटीज आती थी काम करने के लिए, एंड आई वॉज फ्रेंड्स विद द पेशेंट्स, एंड आई वॉज फ्रेंड्स विद द पेशेंट्स रिलेटिव्स ऑल्सो. सारा दिन मैं गप्पे मारती थी बैठ के उनके साथ. तो वो एक माहौल अलग हो जाता है. और आज हम जब देखते हैं वार्ड्स में जाके, तो सब ऐसे, यू नो, चुपचाप बैठे हुए, क्यों? एंड ऐसे क्यों बात नहीं कर रहे हो, क्या हो गया है? कम आउट ऑफ दैट फेज. इट्स व्हाट आई टेल इज, कैंसर का ट्रीटमेंट एंड जिंदगी दोनों पैरेलल चलानी पड़ती है. पेशेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं ना, जब कैंसर ठीक होगा तब ये करूंगा. नहीं, ये नहीं करना है. दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू आर डूइंग. आज मूवी देखनी है, आज कीमो के बाद मूवी देखकर आ जाओ. वेयर अ नाइस मास्क, गो एंड वॉच अ मूवी. यू वांट टू हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स, वेयर अ मास्क, गो हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स. Don't push things out. These things live. This activities, your friends, your family, going out, going for a movie, studying. Don't leave your education. Parallel चलाओ. तभी तो आपको लगेगा कि आप उस कैंसर के जोन से तो बाहर आ पाओगे. एंड व्हेन यू आर विद योर फ्रेंड्स, डोंट टॉक अबाउट कैंसर, नॉट एट ऑल. इफ समबडी आस्क्स यू कैसे हो, बहुत बढ़िया. मैं तो ये कहती थी, बहुत बढ़िया. डोंट टॉक अबाउट द डिजीज टू एवरीबडी, अदरवाइज आपके पास सिर्फ वही कॉन्वर्सेशन रह जाएगा. डोंट टॉक अबाउट इट. आपने हॉस्पिटल में बात कर ली, आपने सब कर लिया. व्हेन यू आर विद डिफरेंट सेट ऑफ पीपल, टॉक डिफरेंट, लिसन टू देम. तो यहाँ पर ना थोड़ा कैंसर के अलावा भी कुछ आएगा. सो मेक फ्रेंड्स एंड जस्ट लिव योर लाइफ, टेक इट पैरेलल. दिस इज व्हाट आई suggest. That's so beautiful. You know what? In my mind, the image is like you're like a woman, Mona Bhai types. Like you are all happy, and that's the Ashwara, kind of life is image. too short. Life is too short to cry. Life is too short to give importance to negative things. Life is too short to crib. Life is too short to look at the negativity of it. No, I think maybe I can understand that. Yeah, it is very difficult to like not cry at all and like be like, huh, like you mentioned, ki No, sab you kuch have to theek hai. cry. No. Exactly. Don't So express your emotions. yeah, so express it and But let it go and look at other things as well. yes, So yes. that You way want to it's not. cry? You want to cry Yeah. 10 times? You cry 10 times. You come out of the blood test, रो लो. जब मन करे तब रो लो, because don't put your body under pressure. रोने से ना you feel relieved. Okay? But then don't just be in that phase all the time. जो स्पेशली पेशेंट्स Yeah. गलती करते हैं हर वक्त, मुझे कैंसर हो गया, मुझे कैंसर हो गया, मुझे कैंसर हो गया, मुझे कैंसर हो गया, मैं मरने वाला हूँ, मैं ये मैं वो. अरे यार, अगर मरने वाले हो भी तो क्या कर सकते हैं? मेरा ये क्वेश्चन होता है. आज तो जिंदा हो ना, तो आज तो कर लो जो करना है. कल की कल देखी जाएगी. एज अ कैंसर पेशेंट और एज एनीबॉडी फॉर दैट मैटर, ऐश्वर्या, वन डे, टेक वन डे. आज मैं, मेरा ये फंडा था, मैं आज सुबह उठी हूँ, आज भी मेरा यही फंडा है. अगर मैं आज सुबह उठी हूँ, आई हैव टू मेक माई डे काउंट. आई विल गो फॉर माई वर्क, आई विल गो विद माई फ्रेंड्स, आई विल गो टू जिम, आई विल डांस, आई विल टेक केयर ऑफ माई डॉटर, आई विल मेक अ स्टडी, आई विल डू एवरीथिंग. एंड इवनिंग व्हेन आई स्लीप, ऐसे रोके कल की कल देखी जाएगी. तो मे बी दैट इज वाई मैं जिंदा हूँ. अदरवाइज जितना कॉम्प्लिकेशंस मेरे केस में थी, मेरा तो जिंदा होना ही ना, मतलब पता नहीं कैसे पॉसिबल था. And look at you today. Like कोई सोच भी नहीं सकता है like what all that you have gone through. What were those small things which you could do again, or any small victories that happened that it made you feel like okay, I'm progressing in on a positive path. इसमें ऐसा आता ना, जैसे आपका रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स अच्छे आ गए, एच बी अच्छा आ गया, प्लेटलेट्स अच्छे आ गए, यू नो, डॉक्टर्स टेल्स यू कि कैंसर कम हुआ है, यू नो, यू आर डूइंग वेल. ये तो चलो है ना. दूसरा, यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड फील एनर्जेटिक. प्रॉब्लम विद कैंसर पेशेंट्स इज दे फील वेरी लो ऑन एनर्जी, बिकॉज इतना ज्यादा दवाई बॉडी में जाता है ना कि आप एनर्जेटिक फील नहीं कर पाते हो. So if someday you feel very energetic, you feel so good out of the world and you feel like आज तो मैं बहुत यार I'm going to make rock my day today, और आधे घंटे में ना ठुस एनर्जी खत्म. छोटी छोटी खुशियां होती कि आज का दिन बहुत अच्छा गुजर गया, आज रिजल्ट्स अच्छे आ गए, आज कुछ अच्छा खा लिया, क्योंकि Yeah, कई बार I've तो डाइट heard बहुत कि रिस्ट्रिक्टेड होती है.
You can't eat a lot of things, you या can't taste a कीमो के lot of बाद things. टेस्ट खत्म हो जाता है, यू कांट Hmm. टेस्ट एनीथिंग। आपको आज टेस्ट आ गया किसी चीज का, यू फील वाओ, मजा ही आ गया। यू नो कईयों को बहुत रिस्ट्रिक्टेड डाइट हो जाती है कि आप जैसे ओरल कैंसर वाले पेशेंट्स Hmm. होते हैं, कुछ खा ही नहीं पाते हैं, सब कुछ ग्राइंड करके खा, ट्यूब्स में डालना पड़ रहा है। तो हर एक के लिए अलग अलग छोटी छोटी खुशियां होती हैं। Yeah, definitely the small things help. And एक रिपोर्ट कहती है ना कि आप बेटर हो, ओ यू फील कि बच गए। पर मजा कब आता है ना, अगले महीने की रिपोर्ट कहती है लग गई। आई एम सो सॉरी फॉर माय लाइफ। no, it's मतलब okay. अगले महीने की रिपोर्ट कहती है कि रिपोर्ट्स ठीक नहीं है। तो दे आर हाइज एंड लोज। It's okay, but I think you've given such good tips even for people today. That sounds so beneficial. I'm sure a lot of people will find it so helpful. So you said that you got treated in Mumbai at an army hospital. So, but that's not something everyone is that's not something accessible for everyone. What kind of, if you can remember at the time, I know you were quite young, what kind of memory do you have about finance का क्या हुआ था? How much of the treatment was, funded? How much, like, did you have to spend? Did you have insurance, or did you even need insurance? And did it affect your family? Like, do you know anything about नहीं, this? मेरा तो ऐश्वर्या, जस्ट बिकॉज माय फादर वाज एन आर्मी, सो हमारा तो Hmm. मेडिकल इज कवर्ड है ना। Okay. बट उसी वक्त वन ऑफ माय Like फ्रेंड्स मदर completely? वाज गोइंग थ्रू, नहीं मतलब जो आपके दवाइयाँ आ रही हैं वो सारा कंप्लीटली, ऑलमोस्ट कंप्लीटली कवर्ड, बस जो Okay. टेस्ट्स होते हैं जो अगर उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में नहीं हो रहे हैं और आपको बाहर किसी लैब से करवाने हैं, जो मैं बहुत फ्रीक्वेंटली करवाती थी, तो देयर इज नो डाउट लॉट ऑफ मनी गोज इनटू इट। हमारे भी बीइंग Yeah. इन आर्मी आल्सो स्टिल देयर इज लॉट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस ऑन माय फादर, नो डाउट अबाउट इट। बट येस आई डू रिमेम्बर इज कि मेरे एक फ्रेंड की मदर को हुआ था कैंसर। मतलब मेरा हो गया था, मैं ट्रीटमेंट करके बाहर आ गई थी, एंड वन ऑफ माय फ्रेंड्स मॉम हैड ब्लड कैंसर, एंड आई रिमेम्बर उनका, they had to spend 50 lakh and still the auntie died। Oh. मतलब this is, we are talking about this kind of money here, you know today also अगर आप किसी भी अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे क्या, आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, if it's not government, you really have to shell out a lot of money। बट थैंकफुली बिकॉज ऑफ दिस, जो मोदी सरकार ने जो वो निकाली है 5 लाख वाला जो उन्होंने स्कीम निकाली है आयुष्मान, इसमें ना बहुत हेल्प हो गई है। इवन अगर आप, क्योंकि आयुष्मान इज एक्टिव इन एनी हॉस्पिटल, तो ऐसा नहीं है कि अब आपको सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही आपको थोड़ा फायदा होगा, अगर आप किसी भी नॉर्मल हॉस्पिटल में भी, प्राइवेट में भी जाते हो, तो आप ये स्कीम चला सकते हो। तो फाइनेंशियल बर्डन स्टिल ना ऐश्वर्या है आफ्टर दिस स्कीम ऑल्सो। बहुत सारा टेस्ट हैं, बहुत सारे मेडिसिन हैं, कीमोज हैं, जो ये चीजें कवर नहीं करती हैं, तो जो पेशेंट को अपनी Hmm. तरफ से लगाना पड़ता है। आपने कितना भी स्कीम ले ली है, आपने कितना भी आयुष्मान कार्ड चला लिया है, स्टिल देयर इज अ फाइनेंशियल बर्डन विच यू हैव टू फेस। एंड उसी के लिए ना बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि बिकॉज आई वर्क विद वेरी अंडर प्रिविलेज पीपल, तो मेरे पास ऐसे केसेस भी आते थे कि मैम हम घर बेच देते हैं, एक ही घर है उनके पास, उसमें भी एक ही कमरा है, ठीक है, उसको भी बेचने की नौबत आ जाती है। देन आई यूज टू पुल दिस एनजीओज हु वर्क फॉर कैंसर ना, आई यूज टू पुल दिस एनजीओज की आ जाओ, आई यूज टू पुट इन वर्ड की रेजिंग फंड्स फॉर देम। देयर इज लॉट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस तो है, आज भी है, उस वक्त तो बहुत ही ज्यादा था, आज तो चलो आफ्टर स्कीम्स ऑल्सो वी हैव लॉट ऑफ फाइनेंशियल बर्डन। Yeah, but good that the government also somewhere is trying to support गवर्नमेंट people. इज And ट्राइंग, अब तो इतने सारे, आई टोल्ड यू ना, देयर इज लॉट ऑफ स्कीम्स आपकी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपको स्कीम्स दे रही हैं, आपको स्टेट गवर्नमेंट्स भी स्कीम्स दे रही हैं, आपको आयुष्मान कार्ड जो सीधा 5 लाख का कवर आपको दे रहा है, तो कम हुआ है, देयर इज नो डाउट। पहले में और आज में तो बहुत फर्क definitely. है, And बहुत even फर्क there's a lot of awareness about health insurance, and a lot of companies now है। यस, provide for employees. So somewhere there is help out वी आर there. इन अ And वेरी वेरी, definitely I will get in touch with you so that we can prepare it like a proper list so that we can share with our viewers. And and एब्सोल्युटली। we'll definitely share your contact as well. So yeah, I think that should help a lot of people. And I mean, of course, the moment you think of any kind of healthcare, money is what comes to people's mind, and बिगेस्ट, that also kind of prevents people from taking treatment. Sometimes I just feel like I'm not even worth spending this much money on. All that kind of thoughts also go through, which is so sad that people think.
I would rather have that money for my children's education or so than like I live my life. You can get help through somewhere. Like there are a lot of people who are ready to help you and get you through this. So like that's what we would like to tell people through all of this, that somewhere the people like Sapna and people all over the world with NGOs and the government, like don't give up so easily. Please reach डोंट out to गिव अप। people and नहीं, नहीं, definitely you ऐश्वर्या will मेरे पास get भी कई help बार from somewhere. इतना ज़्यादा टाइट सिचुएशन भी आई है ना कि मतलब इमीडिएटली आपको मतलब 25,000 चाहिए, एमआरआई करानी है, आपको 20-25,000 इमीडिएटली शेल आउट करने हैं, नहीं हो पाते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। उसके लिए इतनी स्ट्रगल हम लोग करते थे, किसी को फ़ोन कर, इसको फ़ोन कर, रेज़िंग द मनी बट टच वुड, आई फील ब्लेस्ड कि आज तक अगर मेरे पास कोई भी केस आया है, तो वो बिना हेल्प किए मैंने नहीं छोड़ा है। मतलब मैं आई गो क्रेज़ी कि भई अब तो आ गया है तो वापस नहीं जाना चाहिए। कहीं न कहीं से कुछ भी करके करते हैं और बहुत एनजीओज़ हैं। आप देखिए यू गेट इन टच, पीपल शुड जस्ट नॉट गिव इट अप। There are good NGOs, there are schemes, and there's a lot of help, no doubt. Absolutely. So you did tell us that a lot of things, which you wouldn't do back then, like if you talk about reflections of the past and your takeaways and all, you said that I would give more time to you, do fun things, live a life a little, which is such a beautiful thought. Like, definitely that I think that will resonate with anyone who's going through a very difficult time, be it cancer, be it some other disease, or any other difficult life situation. Back then, as a 19-year-old, when you were diagnosed, did you imagine you would be here today? Not at So all. if I you had not even exactly imagined right. I'll be living. So if you current you, what would you like to tell that little 19-year-old? What kind of message would you like to give that? And someone who probably is in that same situation as you was back then, like those people who just have suddenly gotten the news, what kind of message would you like to give them? पता है ऐश्वर्या, it is too difficult. If I look back today, sitting here in front of you and saying these things, it's very easy. But अगर आज भी पता चले कि जैसे कि कुछ है, there's something I might have cancer, it still gives you shrills. After being exposed to cancer work and treatment and everything, after today also, if I'll come to know, it'll give me, lot of pain because this disease is actually very scary, because it takes a toll on your physical, your mental health, your work, your lifestyle, your money. It affects every aspect of your life. If like you asked me, if I have to tell something to that 19-year-old girl, I would say, हो जाता है यार, कर लो. Don't give up. Don't be sad. Life and treatment, please parallel chalao. Don't wait for anything. How much your body is weak today, how much you're vomiting, how much you can't eat anything. It's all right. Just keep a positive attitude that you will go through it. Why cancer survivor term has been coined? Why not a heart attack survivor? Yeah, why not a kidney stone survivor or a dialysis survivor? No, because cancer patients is fighting through cancer is like a war because you are fighting against yourself. Your body is telling you, I can't get up. I can't take chemo. When your mind has to be that strong that you tell your body, no, you will get up. No, you will take chemo. So you're basically fighting with your own self. I don't want to go to hospital today. I am tired of chemo and I don't want a treatment. These thoughts come and you cry and you feel so disgusted about the appearance, your look. You don't want to come out of your room where your other friends are looking so beautiful. But then हो जाता है, निकल जाता है टाइम, Absolutely. ट्रीटमेंट हो जाता है, यू कम बैक, आप ठीक दिखने लग जाते हो, आपके बाल वापस आ जाते हैं, आप खा पाते हो, आप जी पाते हो। बस वो एक जो आपकी जर्नी है ना, उसको इतना पॉजिटिव यहाँ से रखना है। मेंटली यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, यू हैव टू फाइट अगेंस्ट योर ओन थॉट्स। दिस इज Absolutely. व्हाट आई वांट टू से। I think this is like cancer is not relatable to me, but just in general, I think that advice is so beautiful that no matter what you're going through in life, never feel कि I will live
my proper life once this gets done or once that gets over. You don't know You when don't know. what life is going to be like. So just Actually. sure, go through everything, feel bad, cry about it, but don't give up on things, don't miss out on things And some feeling days ना ऐश्वर्या kabhi you to. want to give up. Some days you feel like कि नहीं मुझे Hmm. नहीं करना है. ये आएगा. You know, some days you'll feel जैसे मेरे साथ भी हुआ था कि मुझे जाना ही नहीं है हॉस्पिटल. I want to die on this bed today. My mom is sitting there, I'm sitting there, and she's telling me, let's go to hospital. And I said, I am not going. I want to die here today. You know, these moments will also come. Then comes your family, then comes your support system. So make your support system very strong. Keep in touch with your friends, keep in touch with your family, let them know what you're feeling, you know. जब आप अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो because you will get tired, there's no doubt about it, then these people will keep you up. And for your support system, your parents should also have a support system because they're also fighting. Your mother has to talk to her sisters, your mother has to talk to somebody, to her friends, your father has to talk to his friends, you know, the family members should also have their own support system. So Absolutely. Like that's I why feel like communities matter. Then maybe you can find someone. I think in today's day and age of social media, we were also actually trying to do this. We are trying to build communities as well that you can get in touch with other patients and maybe you can talk to someone who's going through exactly the same things that you are. So hmm, yeah, definitely I think talking to people would help and hopefully we'll वो try it to does connect help a lot. people with जैसे everyone. So जैसे छोटे-छोटे yeah. क्वेश्चंस होते हैं, जैसे अब समडे ना यू विल फील कि मुझे ना कीमो के बाद बहुत वॉमिटिंग आ रही है, तो पेशेंट्स को लगता है कि सिर्फ उन्हें ही आ रही है। उन्हें लगता है कि सिर्फ ये चीज़ उन्हीं के साथ हो रही है, बट अगर वो किसी और पेशेंट से सुनेंगे कि नहीं यार मुझे भी आती थी या मुझे भी आती है, तो आपको लगता है कि आई एम नॉट अलोन इन दिस। तो इफ यू कैन डू दैट, यू नो, इट इज़ वंडरफुल। You know, if you can come up with a system where people can enroll and people can have, you know, support groups online, ले लो अगर not offline, तो online support system अगर support groups बन रहे हैं and people are discussing about their experiences, oh, it's going to do wonders. Let us know now, Sapna. Like, how was your life now? Like, do you think, did you think you would be here? Like, tell us how does your life go on now? Let the audience know that your life is so much better than what you imagined it to be. Like, have your friends changed physically, mentally, work? What are the kind of changes, and what are you like really happy about? See, I am तो very happy the way my life has turned out. बिकॉज अगर कैंसर ना हुआ तो आज मैं एक आर्मी अफसर होती, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। तो एक लाइफ डिफरेंट टेंजेंट पे चल रही होती। वो नहीं है तो आज ये है। हाँ, अगर वो जो एक मिस्टेक जो मुझे लगता है कि मेरे साथ ना होती तो मेरी लाइफ फिजिकली थोड़ी बेटर होती। यू नो, बिकॉज नाउ बिकॉज ऑफ दैट इशू, बिकॉज ऑफ दैट कैल्शियम इशू, मैं बहुत रिस्ट्रिक्टेड एरिया में काम कर सकती हूँ कि मतलब आई हैव टू बी वेरी क्लोज टू, एज आई टोल्ड यू, विद हॉस्पिटल, आई हैव टू बी इन मेडिकल अटेंशन ऑल द टाइम। अगर ये चीज भी ना होती तो भी मैं थोड़ा और ब्रॉड अपनी जिंदगी जी पाती। तो ऐसी बहुत चीजें हैं जो मैं करना चाहती हूँ और नहीं कर पाती हूँ बिकॉज ऑफ द डिजीज, एंड दिस हैपेंस विद एवरीबडी। इफ एनीबडी वुड लिसन टू दिस विल अग्री विद मी कि कैंसर से पहले और कैंसर के बाद की लाइफ ना ऐश्वर्या बहुत अलग होती है। कैंसर से पहले यू आर जस्ट फ्री, यू नो, एंड यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। बट आफ्टर कैंसर ट्रीटमेंट देयर आर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस जो आ जाती हैं, एंड आई फील कि अब आ गई हैं तो एक्सेप्टेंस इज द गेम। if people accept it, ready to face what this life is going to give, it's much better than cribbing कि ये हो जाता वो हो जाता। बुरा लगता है, किसको नहीं लगता, but acceptance is the key. Accept what has changed, you know, physically also people look different, आवाज बदल जाती है Hmm. कईयों की, that kind of depends upon the cancer, and weakness body में बहुत ज्यादा रहती है। You have to be very careful about your diet, you know, what you eat. You can't put bad food in your system. Your system has to be good, immunity has to be good, एंड there's a lot of changes. आप जितना पहले जैसे जिन पेशेंट्स के साथ, बच्चों के साथ स्पेशली मैं काम करती हूँ, टीनेजर्स, उनको होता है कि मैम पहले हम डिस्को चले जाते थे, अब नहीं जा पाते हैं, यू नो, द काइंड ऑफ अपेयरेंस वी हैव। तो आती है, देयर आर लॉट ऑफ डिफिकल्टीज दैट वी पेशेंट्स फेस, but I suppose accept it and move on. There's nothing, you can't question about these things. It's better if you don't. I mean, this is what you were kind of hoping for, right? To get out of it and just हाँ, make out hope is of, come out of cancer, just get cancer yeah. free, just get out of the hospital. You don't want to see hospital again. आपको इतनी नफरत हो जाती है हॉस्पिटल से कि मुझे यहाँ तो जाना ही नहीं है, you know, because इतना
there's a lot of pain there. आपके एक simple blood test के लिए भी they are pricking you, you know. तो और वो इतना frequent होता है कैंसर पेशेंट्स की लाइफ में ना कि ऑलमोस्ट एवरी डे प्रिकिंग हो रही है, एवरी डे कोई ना कोई टेस्ट हो रहा है. So it is tough, no doubt. But then don't cry about it. Trust me, one day, every one of you who's going through cancer is going to called as cancer survivor, and you feel very proud of it. I feel very proud of it that I actually survived this war. So you will also survive one day, and you will be sitting like this someday and sharing your experiences. So it feels good. Enjoy that. Enjoy your journey. Be happy in your journey. Move on. I think with that, we just anything, any words of gratitude for anyone that if you remember doctors who treated you, nurses, any professionals who treated you, if you would like to mention them, thank them, and any kind of hopeful message that you'd like to give, any of your words. I really want to thank my doctor, my oncologist. Commodore Phantom was his name. He was a naval officer. Very cute Parsian guy. Huge. And he was a very big support for me because, as I mentioned, that I was like one of the first initial patients, Kelo. So he was also learning with me. So he used to communicate with me very clearly कि सपना मुझे नहीं पता हाँ मतलब I'm trying my level best to keep you alive but let's see. And I used to tell him कि don't worry मैं मरने वाली नहीं हूँ आप कुछ भी कर लो मतलब I just want to share one incident. Sure. I was very sure about myself कि I did not want to die at 19. Who wants to? So Yeah. who wants to, but there are मतलब अगर मैं आज की बात करूं हमारे पास हैं ऐसे टीनेजर्स जो गिव अप कर चुके हैं कि नहीं अब नहीं होगा. तो मैं उन्हें बोलती हूँ कि यार मैंने तो 7 साल और आज भी झेल रही हूँ, आज भी मैं दिन में 20 गोलियां खाती हूँ जिंदा रहने के लिए. तो इतना भी कुछ नहीं है मतलब डोंट प्रेशराइज योर सेल्फ विद दीज थॉट्स कि मुझे क्यों हुआ यू नो मेरा करियर खत्म हो गया मैं पढ़ नो डाउट आपका एजुकेशन बहुत सफर करती है आपको बहुत ज्यादा टाइम हॉस्पिटल्स में स्पेंड करना पड़ता है बट आप पढ़ाई नहीं छोड़ो आप जस्ट गो थ्रू इट सेल थ्रू इट आई जस्ट कीप ऑन टेलिंग देम कि ना एक बहुत बड़ी नदी है जिसमें से तुम तैर रहे हो and I am there. I always try to be there with my patients, कि let's sail together. एक साथ बस निकल जाओ because एक दिन you will be standing on the next shore and you will look back and you'll say thank God give up नहीं करा. You will say that. So आज जो तुम कह रहे हो ना कि मुझे गिव अप करना है कि मुझे नहीं ट्रीटमेंट करवाना है या मुझे नहीं कैंसर के थ्रू जाना है या मुझे आज ही फ्री कर दो कैंसर से मैंने कहा एक दिन ना तुम ही खड़े होके बोलने वाले हो कि थैंक गॉड गिव अप नहीं करा कि आज जिंदा हूं और इट्स अ ब्यूटिफुल लाइफ दैट आई एम लिविंग टुडे. तो जस्ट लुक ऑन दैट शोर देयर कि मैंने वहां खड़े होना है. And it's okay if sometimes the speed gets slow, sometimes it gets fast, sometimes you stop for a while. That can happen to ठीक है anyone, right? So वंस I नहीं think वो हर रोज होगा. वी आर टॉकिंग अबाउट कैंसर है हर रोज होगा हर रोज आपको लगेगा बस हो गया आई डोंट वांट टू डू दिस एवरी डे यू हैव टू गेट अप एवरी डे यू हैव टू डू इट यू कैन डू इट आई डिड इट यार मेरे पास तो कुछ नहीं था आज तो इतना फाइनेंशियल सपोर्ट है इतने सपोर्ट ग्रुप्स हैं डॉक्टर्स आर सो एजुकेटेड वेल नोन ट्रीटमेंट हर जगह अवेलेबल है हो जाएगा ट्रस्ट मी हो जाएगा मेरे टाइम पे तो कुछ भी नहीं था. and I think people who are watching this, you can get in touch with Sapna. I think just talking to her and having her in your life itself will be like one big Oh, no, support and please. treatment for you. नहीं So नहीं yeah, we ऐसा will कुछ नहीं है. definitely Sapna, if people want to contact you, where can they get in Absolutely, touch with please. you? Yeah, please, Absolutely. if you could mention any of your. You are on Facebook by the name of Sapna. I am on Facebook, Sapna Karan, and on Instagram again, Holistic Life, Sapna Karan. Just put Sapna Karan. I have shared my Insta Sure. link with you. You can always put it up. Hanji. Yeah, definitely. Like if anyone wants to get in touch with her, she just shared her handle, so you can directly contact her. Or in case y'all can let us know as well, we'll directly put you in touch Yes. with Sapna. Yes. So yeah, I think with that we have. I'm sure if I keep talking to you, I will just lose track of time, and there's so much that we can talk about and just keep going on. But yeah, for today, I think we've covered a lot, and so much, like so much of what you said is
I'm so sure it'll be helpful for not just cancer survivors, but people in general. You're such like a beam of happiness and positivity. Like it just ये तो radiates from you. थैंक यू सो No, मच। no, absolutely. Like, yeah, so thank you so much, Sapna, for coming on to the show and sharing your story with us, your experiences with us, and hopefully you continue to inspire and help so many out there. And through this show, after this show, I hope so many others get in touch with you and they get Absolutely. all the I help really that's want, if needed. I can help anyone, Aishwarya, if through your channel, if I can help people, why not? I would love to, you know, I would Oh, love to. absolutely. And to remind people again, all services of Sapna is absolutely free. So please Free. don't, which is a Absolutely. brilliant, unbelievable thing. Yeah, yeah. But like we have How can angels you like charge Sapna for doing some, this. Aishwarya, if somebody is going through so much pain, can you charge for it, really? I can't think. मैं You क्या, कोई भी नहीं कर पाएगा। so absolutely without hesitation, even if it's not for you, if it's for someone else, please refer Sapna and you can get in touch with us as well. So it has been a lovely, lovely time talking to you, Sapna. Thank you so much. I think this would be one of the most, I think, favorite interactive episode Thank for you a so lot much. of people out there. No, no, So if through yeah, your this was channel, if I can spread any information, it comes, किसी के भी कुछ भी काम आ जाएगा ना, I'll be blessed. absolutely, we'll do more sessions with you as well, and like we'll think of doing another part. Yeah, absolutely, we'll be in touch as I'm well. always So there, yeah, Aishwarya. thank Yeah. you, thank you. So yeah, this was another Paxa story. So if you have any other questions or suggestions or anything like that, please do mention in the comments below. If you are a cancer survivor and you want to share your journey with us, please do get in touch with us at Paxa. Thank you so much for watching, and I'll see you next time with another Paxa story. Goodbye.